Okay, let's begin. So, what is it that we discussed in yesterday's class? Standard ellipses पे बात की हमने, है ना? Horizontal ellipse as well as vertical ellipse, and we were discussing questions related to standard form, isn't it? So there are certain questions which needs to be solved, है ना? Based on standard format, ठीक है? अच्छा, this will be question number 12. अच्छा 11 है क्या? अच्छा, तो कल मैंने बताया था वो लैडर वाला क्वेश्चन है ना, तो वो लोकस वाला, लोकस के बाद किया था हमने, राइट? वो एलिप्स हाइपरबोला के बाद किया था हमने रॉड वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपना वर्कशीट में भी है, ठीक है? सो एनीवे 11 क्वेश्चन राइट डाउन. फाइंड EOE whose length of minor axis is equal to distance between foci and length of lattice sector. Length of lattice sector is 10 units. Find focal distances of points on 25x square is equal to 1600. Okay. Find eccentricity whose length of lattice sector is half the length of major axis. If major axis is thrice minor axis, then find eccentricity. If distance between foci is 10 and length of lattice sector is 50, find equation of ellipse. Right? These are some really nice questions. ठीक है? Shouldn't take much time. So basically getting used to finding equation of ellipses here. So basically क्या है, ये सारे standard format में है unless until mentioned, है ना? Usually question में they would mention कि center is at origin and its axes are coordinate axis करके. इसका मतलब we are looking at standard ellipses, ठीक है? Always keep this in mind. Standard ellipse का मतलब x square by a square plus y square by b square is equal to 1. Always, है ना? Standard ellipse का मतलब. अच्छा, so ultimately you see to find equation of ellipse we basically need semi major axis and semi minor axis, माने a और b के values पता होना चाहिए, right? If we can find a और b के values we'll be able to find equation of ellipses, ठीक है? Let's see what is given to us. Find equation of ellipse whose length of minor axis, अच्छा b है ना, is equal to distance between foci. Distance between foci का मतलब 2AE है ना, ये कंडीशन नंबर 1 looks like. अच्छा सॉरी, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है ना, हाँ व्हाट विल बी गेट है ना. अच्छा 2 कटेगा, सो B इज इक्वल टू AE, कंडीशन नंबर 1 है ना. ओके, एंड लेंथ ऑफ लैटिस वेक्टर, व्हाट इज लेंथ ऑफ लैटिस वेक्टर? yes 2b square by a which is equal to 10. अच्छा इसका मतलब b square is equal to 5a, condition number 2, right? okay, now the thing is दो कंडीशंस है, कैसे भी करके अपने को a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है. ओके,
So b square, अच्छा आपने नोटिस किया कि looks like there are three unknown quantities a, b, e, but actually e जो है वो a और b के टर्म्स में लिखा जा सकता है. But what was the relation between a, b, e again? अरे हाँ ये तो है, हाँ स्क्वायर वाला, क्योंकि स्क्वायर है. b square is equal to a square into या e is equal to root over 1 minus b by a का होल स्क्वायर. राइट. अच्छा शायद से ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा. राइट है. अच्छा 14 कर लेते हैं. अच्छा बेसिकली क्या है, टू फाइंड एक्सेंट्रिसिटी, गाइस रिमेंबर टू फाइंड एक्सेंट्रिसिटी वी डोंट सेपरेटली नीड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, है ना, क्योंकि एक्सेंट्रिसिटी का एक और फॉर्मूला भी है, वी कॉल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a. ऐसे लगता है कि a और b दोनों की वैल्यूज की जरूरत है, बट नॉट, वी ओनली नीड द रेशियो. देखो व्हाट इज गिवन टू अस इन 14, मेजर एक्सिस is twice minor axis. Major axis का मतलब remember 2a is 3 times 2b, है ना. मेजर एक्सिस पूरा 2a, इसका मतलब 2 2 gets cancelled, so a is 3b माने b is how much. अच्छा हम इसको ऐसे लिखेंगे, अपने को क्या चाहिए, b by a चाहिए, तो b by a कितना होगा 1 by 3, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 11 है, but we are trying we are solving question number 14 here. So e is equal to root over 1 minus b by a का whole square 1 by 9 root 8 by 9 माने 2 root 2 by 2. ठीक है. अच्छा anyway this was your question number 14. Fine. But what do you think we have to do? 1 2 ये देखो ये एक और कंडीशन है 3. What do you think we have to do? क्या इसको स्क्वायर करें? इसको स्क्वायर करने से क्या आएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर स्क्वायर. अच्छा तो ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, है ना. इसको स्क्वायर करने से b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर स्क्वायर यहाँ डालेंगे, तो उससे क्या फायदा होगा, a स्क्वायर e स्क्वायर a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर. 2 e स्क्वायर इज इक्वल टू 1, e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by 2. अच्छा ये वापस यहाँ डालेंगे तो a और b के बीच में एक और कंडीशन मिल जाएगा फिर, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 minus 1 by 2 is 1 by 2. So guys you see we have eccentricity actually here. Okay, now what, in fact we already have b square is how much, 5a. 5a is a square by 2, a square is 10 है माने a is 10. a 0 नहीं हो सकता इसलिए हम a को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो a 10 है, यहाँ डालेंगे वापस 100 by 2 50. This was the tricky question, wasn't it? Now we have equation of ellipse, don't we? X square by a square plus y square by b square is equal to 1. This was a tricky question, no doubt, right? So again you see ये basic condition, this and this, and always keep in mind we have a relation between a, b, e. What is that? b square is equal to a square 1 minus e square, right? So अच्छा तो अगर हम ये b square का ये वाला वैल्यू उठा के यहाँ डालते तो कुछ फायदा हुआ रहता क्या, नहीं, only a would have got cancelled. इसलिए हमने क्या किया, इसको स्क्वायर करके यहाँ डाला तो b स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, a स्क्वायर भी कैंसिल हुआ, तो e का वैल्यू मिल गया. Okay, this was a nice question, right? Not easy at all. Next. You see, we'll try question number 15 next, है ना? If distance between foci is 10, what is distance between foci? Is equal to 10, माने AE is equal to 5, है ना? Condition number 1. इसके बाद what else is given? Length of lattice rectum is 15, माने 2b square by a is 15, माने b square is 2. 15 by 2 times a. Okay. Now what do you think we have to do?
बी स्क्वायर, अच्छा वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रिलेशन बिटवीन ए बी। अच्छा, तो बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज 15/2 ए। एक ए कटेगा, अरे हाँ ई मिल जाएगा अपने को लगता है ना। तो अपने पास है a इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज 15/2 और यहाँ है ए ई इज इक्वल टू 5, ए ई इज इक्वल टू 5। क्या दोनों को डिवाइड करें? दोनों को डिवाइड करने से क्या होगा? ए कटेगा, isn't it? 5 3 are 15, so 1 minus e square upon e is 3/2, 2 minus 2 e square is 3e, 2 is e square plus 3e minus 2 0. Looks like we are getting quadratic in terms of e. ठीक है, इसको सॉल्व करें। -4 4 1 जा 2e square plus 4e minus e e minus 2 e 1/2। क्लियरली एक्सेंट्रिसिटी नेगेटिव तो नहीं हो सकता, रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस, तो क्लियरली e 1/2 है। क्या a मिल जाएगा डायरेक्टली? हाँ, e 1/2 इक्वेशन 1 में डालेंगे तो a इज इक्वल टू 10। तो जैसे ही e का वैल्यू आ गया ये इसमें डालेंगे, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 इनटू 10, तो b स्क्वायर इज 75। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर plus y square by b square is equal to। तो these are some really interesting questions है ना, और इससे एक्चुअली इजियर क्वेश्चंस अपना वर्कशीट में है तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो यू सी दिस रिलेशन ऑलवेज कम्स इन हैंडी, b square is equal to a square into 1 minus c square, है ना। तो रिमेनिंग क्वेश्चन शुड बी इजी हियर। पहले 13 करेंगे फिर 12। ओके, फाइंड एक्सेंट्रिसिटी, अच्छा ई निकालना है सिर्फ, whose length of lattice rectum which is 2b square by a is half major axis माने 2a, isn't it? 2 2 कटेगा, this should be easy, direct, same relation, b square is equal to a square into 1 minus e square, 1 minus e square 1/2, e square 1/2 रीअरेंज करो तो e is 1/2। दिस वाज सिली क्वेश्चन है ना, 13 एंड 14 में सिली। अब आते हैं 12th क्वेश्चन में। फोकल डिस्टेंसेस का शायद से फॉर्मूला हम डिराइव किए थे, है ना। रिमेंबर हॉरिजॉन्टल एलिप्स के फोकल डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला था? sp और h dash p, रिमेंबर sp was sp was a minus ex, h dash p a plus ex, is it? अच्छा, अब आराम से डिराइव भी कर सकते हो, नीड नॉट वरी, है ना। ये s और ये h dash, देखो p कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो sp e टाइम्स pm, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, sp is e टाइम्स pm। फिर हम शायद से ये x है, ये a by e है, तो a by e minus x into e करेंगे तो ये मिल जाएगा, ये कल डिराइव कर चुके हैं, है ना। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल के लिए, वर्टिकल के लिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था हमने। अच्छा, तो ये डिपेंड करेगा कि ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है ना। वर्टिकल के लिए b minus e y, b plus e y, isn't it? अच्छा, let's see, 25x, अच्छा, so what do we do in such cases? RHS को 1 है, so 25x square upon 1600 plus 16y square upon 1600 is equal to 1। तो ये y square upon 100, ये कितना होगा? 25, how many times? 25 6 is 150, is it? 6 150 100 64। हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल देखो, b स्क्वायर 100 है, a स्क्वायर 64 है, b a से बड़ा है, दिस इज वर्टिकल। तो वर्टिकल में sp जो है ये होता है b minus e y और h dash p b plus e y, सिंपल।
अच्छा, आपने को ई ढूंढना होगा। अच्छा, वर्टिकल के लिए ई का क्या फॉर्मूला होता है? Anyway, first a is 8, b is 10, e का क्या फॉर्मूला होगा? रूट ओवर b a से बड़ा है स्क्वायर अपॉन b। 100 माइनस 64 36 अपॉन b 10, तो e 6/10 माने 3/5 यूज करेंगे यहाँ। sp is b 10 माइनस e इंटू y, y कितना है 5, 5 कटेगा तो sp 7। व्हाट अबाउट s डैश p b? अच्छा ये प्लस 10 प्लस 3/5 इंटू 5, 5 कटेगा तो s डैश p इज 13। दोनों को ऐड किया तो ट्वाइस मेजर एक्सिस है ना, दोनों को ऐड करने से आएगा 20 जो इसका डबल है। ठीक है, सिंपल। तो बस 2 क्वेश्चंस है, वो करेंगे तो जनरल एलिप्स हो जाएगा, सॉरी स्टैंडर्ड एलिप्स हो जाएगा। अच्छा, अपना वर्कशीट में I'm going to point out a few questions to you. बस यार क्वेश्चंस लिखूंगा मैं। This will be question number 16। क्वेश्चन ये है, find eccentricity of ellipse, find eccentricity of ellipse whose center is at origin, axis are coordinate axis, etc etc। ये तो बेसिक फंडा है। and also passing through, which passes through 4, -1 and -2, 2। He could have also asked us to find equation of ellipse, है ना। अच्छा एक काम करेंगे, find equation of ellipse, है ना। How do you find equation of ellipse if you have been given 2 points? That's the whole point here। मान लीजिए पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, 2 पॉइंट्स दे रखा है जो एलिप्स पर है, तो how do you find equation of ellipse? Guys, since it did say कि सेंटर ओरिजिन पर है और एक्सिस अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड एलिप्स है। It is simply given by x² / a² plus simple। So always keep this in mind, you need a and b to find the equation of ellipse, and you have 2 conditions, 2 unknown quantities। डायरेक्टली बेसिक फंडा सब्स्टिट्यूट करो इसमें, 4, 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 16/a² plus 1/b² is equal to 1। ये हो गया कंडीशन नंबर 1। अब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4/a² plus 4/b² is equal to 1। ये कंडीशन नंबर 2। नाउ यू सी इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू गोना डू हियर। आपके पास 2 कंडीशंस हैं, कैसे भी करके आपको एक को एलिमिनेट करना होगा। सो व्हाट वुड यू डू? किसी को एक को एलिमिनेट करेंगे, किसको? एलिमिनेशन में करेंगे व्हाटएवर, है ना। बस इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16/a² plus 16/b² is equal to 4 and simply अच्छा ये 3 मान लो, 3 - 1, 3 - 1, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये दोनों कटेंगे। अब आप इसको ऐड, अच्छा 3 - 1 किया हमने, है ना, 3 - 1 तो 4/b² - 1/b², 3/b², 4 - 1 3। अच्छा b² बना रहा क्या? b² 1 इसमें सब्स्टिट्यूट करें, 16/a², अरे नहीं 1 नहीं आएगा, कुछ तो गड़बड़ है। कौन सा? सॉरी मैंने 2 - 1 किया, 16 - 1 is 15, है ना, कितना होगा 5। therefore b² is equal to 5। ये कोई भी इसमें सब्स्टिट्यूट करें, जैसे कि इसमें 16/a² plus 1/5 is 1, 1 - 1/5 4/5, a² is equal to 20। इक्वेशन ऑफ एलिप्स पूछा गया है तो x²/20 plus y²/5 is equal to 1। that's it। अगर एक्सेंट्रिसिटी पूछा गया है तो आप जानते हैं क्या करें, e is equal to root over a² minus b² upon a root 20, isn't it? So we do know what to do। root 15/20
रूट माने √3/2। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, मतलब क्वेश्चन बता दूंगा। अभी देखो, नाउ इंस्टेड ऑफ 2 पॉइंट्स ही वुड गिव अस एक्सेंट्रिसिटी एंड अ पॉइंट्स। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 79 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स passing through -3, 1 and E is √2/5। सेम फंडा सेंटर ओरिजिन पर है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो गिवन है ना, स्टैंडर्ड है। तो व्हाट वुड यू डू? सिंपल, पॉइंट है, स्टार्ट तो इससे करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, पॉइंट उसमें डालेंगे, 9/a² + 1/b² = 1, कंडीशन नंबर 1। यू सी वी नीड a एंड b, तो एक्सेंट्रिसिटी यूज करेंगे रिलेशन वाला, b² = a² × 1 - e², तो b² = a² × 3/5, ये कंडीशन 2 है। डू सब्स्टिट्यूट दिस इन कंडीशन नंबर 1, हो जाएगा ना, आगे का आप लोग कर सकते हैं। 9/a² + 1/b², 3a²/5, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 27 + 5 = 3a², है ना, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 3a² = 32, a² is 32/3, इसमें डालो 32/3, b² is 32/5, substitute in ellipse, x² / a² + y² / b², ये 3 ऊपर, ये 5 ऊपर, दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स। सिंपल। वन लास्ट क्वेश्चन टू वाइंड अप स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्वेश्चन पता है क्या, 3 या 4 बार आ चुका है, एंड दिस इज एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग, विल सी व्हाट दिस इज। इसमें थोड़ा बहुत कहानी भी है, क्या है वो, ओके। हेलो, this will be question number 8, right? If ellipse E1 is inscribed in a rectangle, whose axes are, whose sides are parallel to coordinate axis, and another ellipse E2 passing through 0,4 circumscribes rectangle. Then find equation of E2. Okay, what's happening here? Let's see.
तो ये जो एलिप्स है, क्या ये एलिप्स नहीं जानते हैं? इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, इजंट इट? यार ये तो टॉर्टोइस लग रहा है। Right. So this ellipse you see it is horizontal, A being 3, B being 2, 3,0, ये वाला पॉइंट 0,2 एंड सो ऑन, है ना, ये A और ये B। अच्छा ठीक है, तो लेकिन ये एलिप्स को इन्होंने इंस्क्राइब किया है इनसाइड अ रेक्टेंगल whose sides are parallel to coordinate axis। माने ये रेक्टेंगल एलिप्स के बाहर होगा कि अंदर होगा? रेक्टेंगल बाहर होगा, माने एलिप्स रेक्टेंगल के अंदर होगा। तो अब रेक्टेंगल कैसा होगा? पक्का रिमेंबर इंस्क्राइब का मतलब ऑल वर्टाइसेस ऑफ रेक्टेंगल शुड बी प्रेजेंट ऑन, सॉरी, ऑल वर्टाइसेस ऑफ एलिप्स शुड बी प्रेजेंट ऑन साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, है ना। अच्छा, इसका मतलब क्लियरली एंड मोरओवर ही सेड कि साइड्स आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका मतलब डू यू थिंक दिस इज हाउ द रेक्टेंगल शुड बी? क्या ये रेक्टेंगल होगा? इज इट? हां, दिस इज योर रेक्टेंगल, करेक्ट। अच्छा ओके फाइन। क्या हम ये वर्टाइसेस जानते हैं? क्या हम ये वर्टाइसेस जानते हैं? राइट, हम ये वर्टाइसेस जानते हैं क्या? क्या हम ये वर्टाइसेस जानते हैं? What would this vertex be? Yes, 3, 3,2, 3 and 2। Obviously ये बाकी ये भी जानते हैं, है ना। अच्छा नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? Another ellipse E2 passing through this point circumscribes the rectangle। Okay, ये 0,4 होगा somewhere here, probably somewhere here। ये 0,4 है। अच्छा, ये circumscribes the rectangle। So how would this rectangle be? So how would the ellipse be? ऐसा होगा पक्का। अब ये कैसे दिखेगा कि सॉरी, would this be like इसके सारे ऐसे होंगे, माने would it look like something like this? ऐसा होना चाहिए पक्का। looks like this would be a vertical ellipse, है ना। but anyway, क्या अपने पास enough conditions है to find equation of this ellipse? easy, क्योंकि ये भी standard ellipse ही है, x square by a square plus y square by, now it is passing through 0,4। इसका मतलब डोंट वी ऑलरेडी हैव b, हाउ मच इज दैट, है ना, क्योंकि ये b खुद 4 है, देखो, इजंट इट, b इज 4, माने अल्टीमेटली ये 16 है डायरेक्टली। बस अपने को a पता करना है, और a कहां से मिलेगा? इजंट इट, क्योंकि दिस एलिप्स इज सर्कमस्क्राइबिंग द रेक्टेंगल। तो ये 3,2 इसमें डालेंगे, 9/a² प्लस 4/16 इज इक्वल टू 9/a² प्लस 1/4 is equal to 1, 9/a² is 3/4, so a square is equal to, that's it। so x square by 2n plus y square by b square is 16, है ना, is equal to is equation of E2, right। so anyway this was a classic question, already advanced वगैरह में आ चुका है, right। good see, bye, right। so next lecture में हम जनरल एलिप्स करेंगे।